Hello students, good morning. I hope you're doing well. Nationalism in India, I have sent you the PPT that is written by Rabindranath Tagore. I'll be giving you a lecture today, trying to explain the main points. So please note down the main points that I would like to elaborate on. Firstly, he says that there is a problem in India. This is nationalism in India. In India, there is a problem which is not political but social. It's a social problem because there are lots of a variety of heterogeneous kind of a society where you have different caste, different religions, people speaking different languages, different cultures, different ethnicities, and different attitudes also, you can say that. Now, the real problem in India is not political but social. That is what the first point goes. Then he says the politics in the West have dominated Western ideals, and Indians are trying to imitate the West. And another problem is that India is trying to imitate the West. You cannot compare Indians with the Western countries because बहुत ही different उनका social structure है, उनका भी और हमारा भी. Europeans had their racial unity from the beginning, and where natural resources were insufficient for the inhabitants, the civilization has naturally taken the character of political and commercial aggressiveness. Now, they had a resources deficiency, the European countries, and that is why उनका जो nationalism का idea था, concept था, बहुत ही ज़्यादा strong था. They wanted to extend the boundaries because नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास कम थे, तो वो दूसरी लैंड में जाके उनको ऑक्यूपाई करना चाहते थे, तो ताकि वो रिसोर्सेज उनसे एक्सप्लॉयट कर सके. और तभी अफ्रीका और एशिया जो कि बहुत ही रिच थे रिसोर्सेज में, नेचुरल रिसोर्सेज में, इसीलिए वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर आई. तो एग्रेसिव वो इसीलिए हो गए बिकॉज उनके कंट्री के अंदर उतनी ज़्यादा सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं थे, तो उनकी मजबूरी थी, वो बाहर जाना ही था. लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडिया वॉज अ वेरी प्रॉस्परस एंड बहुत ही एक संपन्न कंट्री थी. दे डिड नॉट गो आउट टू एक्सप्लोर बिकॉज दे हैड एवरीथिंग on their land, everything available on their land. So that is why the concept of nationalism did not come to India. They had to deal with neighbors who were strong. In former days they had organized and plundered. In the present age the same spirit continues. कहते पहले भी यूरोपियन कंट्रीज ऐसे करते थे, नेबर्स के साथ लड़ाई होती थी, प्लंडर करते थे, और अभी भी वो ही कंटिन्यू हो रहा है. नाउ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में वो बता रहे हैं कि उसके अपनी प्रॉब्लम्स थी जो कि कॉन्स्टेंटली उसके साथ थी, और वो थी रेस प्रॉब्लम. So many people in the country ask me what is happening to the caste distinctions in India. When this question is asked to me, it is usually done with a superior air. सारे जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जो टिगोर से पूछते थे, कहते बहुत ही सुपीरियर वे से बोलते थे कि तुम्हारी कंट्री में तो कास्ट सिस्टम है, एंड व्हाट अबाउट इट, सो ही सेज बट दे हैव फॉरगॉटन दैट इन अमेरिका ऑल्सो देयर इज़ रेसिज्म. जो ब्लैक्स है उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा किया जाता है. कि देन ही सेज कि आई रिप्लाई दैट व्हाट हैव यू डन विद द रेड इंडियन एंड द negro. Then India has done something. She has tried to make an adjustment of races to acknowledge the real differences between them, where these exist, and yet seek for some basis of unity. This basis has come through our saints like Nanak, Kabir, Chaitanya and others, preaching one God to all races of India. वो कहते हैं ठीक है रेसिज्म है, कास्टिज्म है, लेकिन हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया के लोगों को यूनाइट करने के लिए. Now what is the solution? Now he says in finding the solution of a problem we shall have helped to solve the world problem as well. What India has been, the whole world is now. कहते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा वी हैव हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट वर्ल्ड लेवल ऑल्सो. वर्ल्ड लेवल पे भी हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की है. He says जो इंडिया है वो ही अब वर्ल्ड बन गया. द होल वर्ल्ड इज़ बिकमिंग वन कंट्री थ्रू साइंटिफिक फैसिलिटी, एंड द मोमेंट इज़ अराइविंग व्हेन यू मस्ट ऑल्सो फाइंड अ बेसिस ऑफ यूनिटी विच इज़ नॉट पॉलिटिकल. वो कहते हैं कि एक यूनिटी आ रही है, जो कि इंडिया में एक यूनिटी थी जो कि पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी लेकिन स्पिरिचुअल यूनिटी ज़रूर थी. कहते हैं वर्ल्ड में भी अब वही आ रहा है. दे आर लुकिंग फॉर अ स्पिरिचुअल यूनिटी. ओनली दोज पीपल्स हैव सर्वाइव्ड एंड अचीव्ड सिविलाइजेशन हु हैव द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग देम.
वही सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे कोऑपरेशन की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि इंडिया में है, और वर्ल्ड इज ऑल्सो फॉलोइंग दैम. In our early history, when the geographical limits of each country and also the facilities of communication were small, in those days they were combined among themselves and fought against each other, but it was the moral spirit of combination which was the true basis of their greatness. And this fostered their art, science and रिलीजन. वो कहते हैं हर एक अर्ली हिस्ट्री में हर एक कंट्री की, हर एक लैंड की एक जोग्राफिकल लिमिट होती थी और कम्युनिकेशन बहुत ही कम होता था, तो वो आपस में ही कम्युनिकेट करते थे एंड दे वुड फाइट विद ईच अदर. और ये जो मॉरल स्पिरिट ऑफ कॉम्बिनेशन है, दिस वाज द ट्रू बेसिस ऑफ ग्रेटनेस. हमारी इंडिया की जो ग्रेटनेस है वो ये है कि हमारी जो मॉरल स्पिरिट है वो बहुत ही कंबाइंड थी. मतलब उसमें एक म्यूचुअल कोऑपरेशन भी था और हम बाहर जाके नहीं लड़ते थे, हम अंदर ही अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे. एंड इसकी वजह से आर्ट, साइंस और रिलीजन जो था वो काफ़ी डेवलप हुआ. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया काफ़ी डेवलप था. एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ो तो दे हैड डन लॉट ऑफ रिसर्च. अब प्रेजेंटली क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द प्रेजेंट एज इज़ दैट ऑल द डिफरेंट रेसेस ऑफ मैन हैव कम क्लोज टुगेदर. Presently all the races have come close together. Global world ban gaya hai. Globally everyone is, all the different people of various countries, they're coming together. And again we are confronted with two alternatives. अब हमारे पास दो alternatives हैं. The problem is whether the different groups of people should go on fighting with one another or find out some true basis of reconciliation and mutual help. या तो आप आपस में लड़ो या फिर एक ऐसा ग्रुप बनाओ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ पे आप सारी कंट्रीज इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो. द जाइगेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस for hurting others and warding off the blows for making money by dragging others back will not help us. On the contrary, by their crushing weight, the enormous cost, and their deadening effect upon the living humanity, they will seriously impede our freedom in the larger life of the higher civilization. वो कहते हैं लड़ने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. And just to earn money, if you keep pulling each other's legs and एक दूसरे को आप you fight with one another, that is not going to help. Suppose there is a big country, it can't put their weight on a small country. मतलब they can't pressurize a small country. They should not be doing it. क्योंकि इससे जो freedom है in the larger life वो कम हो जाएगी. During the evolution of the nation, the moral culture of brotherhood was limited by geographical boundaries because at that time these boundaries were true. Now they have become imaginary lines of tradition, divested of the qualities of real obstacles. So the time has come when the man's moral nature must deal with this great fact with all the seriousness or perish. He is emphasizing on moral culture of brotherhood. Morality के ऊपर emphasize कर रहे हैं. कहते हैं everyone should understand that if you want the world to survive, if you want the different countries to survive, then you have to be united and you have to be morally correct, morally support each other. There has to be this concept of moral brotherhood. This is the present scenario. Now this is America versus Europe. Now there is a lot of difference between America and Europe also. European nations में अपने में बहुत nationalism वाली feeling है. They have the different ethnicities. Germans हैं, French हैं, Spanish हैं, English हैं. लेकिन America is a melting point of all the countries of all the nationalities. I realize how much America is untrammeled by the traditions of the past, and I can appreciate that experimentalism is a sign of America's youth. The foundation of a glory is the future rather than in the past, and if one is gifted with the power of clairvoyance, one will be able to love the America that is to be. Now he says America जो है वो it does not think about the पास्ट, वो पास्ट के बारे में नहीं सोचता है और फ्यूचर में अमेरिका जैसी कंट्री ही सर्वाइव करेगी बिकॉज वहाँ पे सारी कंट्रीज़ नेशंस के जो लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं. तो वहाँ का एक डेमोक्रेटिक सेटअप, और जब इन्होंने ये ऐसे लिखा था उस टाइम पे इतना अपैरेंट नहीं था, लेकिन आजकल यू कैन
see that America truly has emerged as a very democratic and liberal country जहाँ पे सबको rights मिलते हैं. America is destined to justify Western civilization to the East. Europe has lost faith in humanity and has become distrustful and sickly. America, on the other hand, is not pessimistic. He says Europe जो है वो humanity का टच उसने लूज़ कर लिया, बहुत ही sickly और distrustful बन गया. लेकिन अमेरिका जो है पेसिमिस्टिक नहीं है, इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. इट इज़ होपिंग कि आगे जाके काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा. यूरोप हैज़ बीन कल्टिवेटिंग दीज हेजेस ऑफ हैबिट्स फॉर लॉन्ग ईयर्स टिल दे हैव ग्रोन राउंड हिज डेंस एंड स्ट्रॉन्ग एंड हाई. जो यूरोप है वो पुरानी आदतों को नहीं छोड़ रहा है और इतनी उसकी जो पुराने ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस हैं, मतलब जो परंपराएं हैं, उनको नहीं छोड़ रहा है. इतने ज़्यादा उन्होंने उनको जकड़ा हुआ है. द प्राइड ऑफ अ ट्रेडिशन हैज़ सेंट इट्स रूट्स डीप इन टू अ हार्ट. उसके जो रूट्स है, उसकी जो प्राइड है, उसका जो घमंड है, वो उसके दिल तक पहुँच गया हुआ है. आई डू नॉट विश टू कंटेंड दैट इट इज़ अनरीजनेबल, बट प्राइड इज़ इन एवरी फॉर्म ब्रीड्स ब्लाइंडनेस इन द एंड. कहते हैं जो प्राइड है, ठीक है, उनको they are feeling proud about their nationalism, but then this is not the solution, and वो last में क्या होगा, वो उनको blind कर देगा. They will not be able to see the good things of the world. Europe has gradually grown hardened in her pride of all her outer and inner habits. She not only cannot forget that she is Western, but she takes every opportunity to hurl this fact against others to humiliate them. This is why she is growing incapable of imparting to the East what is best in herself. अब यूरोप जो है बहुत ही प्राउड हो गया, इसीलिए वो जो बेस्ट चीज़ है यूरोपियन नेशनलिज्म की, वेस्टर्न नेशनलिज्म की, वो उनको इम्पार्ट नहीं करवा रहा है. वो मतलब अपने में ही खो गया, वो उसी नशे में है दैट यू आर द बेस्ट. आई सेज इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यूरोप. नाउ ही सेज, इसमें इसने बताया कि अमेरिका क्यों अच्छा है. अमेरिकन national habits and traditions have not had time to spread the clutching roots around your hearts. अब उनका जो ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स अमेरिका की, उन्होंने उनके दिल पे अभी इतनी जगह नहीं बनाई जैसे कि यूरोपियन का बोल रहा है कि उनकी जो प्राइड है उनके दिल तक पहुंची है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ है. बट इन द प्रेजेंट एज ऑफ ट्रांजिशन, when a new era of civilization is sending its trumpet call to the people of the world across an unlimited future, this is very freedom of detachment. This very freedom of detachment will enable you to accept its invitation and to achieve the goal for which Europe began her journey but lost herself midway, for she was tempted out of her path by her pride and power and greed of possession. वो कहते हैं वो जिस पाथ पे चली थी वो उससे हट गई थी because of greed and pride. ग्रीड मतलब शी वांटेड टू ऑक्यूपाई मोर नेशंस, कॉलोनीज बना रही थी, जैसे वो साम्राज्यवाद के बारे में आपने पढ़ा है. तो उसकी वजह से उसका जो एसेंस था नेशनलिज्म का वो ख़त्म हो गया. सिविलाइजेशन उसकी ख़राब हो गई, जो उसके अच्छे पॉइंट्स थे सिविलाइजेशन के. ऑल द ग्रेट नेशंस ऑफ यूरोप हैव द विक्टिम्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉट ओनली deadens the moral sympathy but also the intellectual sympathy, which is so necessary for the understanding of races which are different from one's own. अब वो कहते हैं कि जो यूरोप है वो दूसरे जो वर्ल्ड है उनकी विक्टिम बन चुकी है. उसने मॉरल सिंपैथी भी गवा दी है, डेड कर दी है, और इंटेलेक्चुअल सिंपैथी भी, जो कि रेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी है. मतलब वो मॉरली भी नहीं समझ पा रही है और इंटेलेक्चुअली भी नहीं समझ पा रही है कि वो जिस कंट्री को रूल कर रही है वहाँ पे उसको कैसे डील करना है. They have to understand कि if they are ruling over India or they are ruling over Africa, they have to understand how to rule over these people, but they're not doing it. They're very proud. If you compare England with Germany or France, you will find she has produced the smallest number of scholars who have studied Indian literature and philosophy with any amount of sympathetic insight or thoroughness. कोई भी ऐसा ब्रिटिश आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा इंग्लैंड में नहीं है जो कि जिसने इंडियन लिटरेचर पढ़ा हो लेकिन उसके मन में वो सिंपैथी हो इंडियंस के लिए. एंड जर्मनी और फ्रांस जो है वो डिफरेंट है. दे विल रीड द इंडियन लिटरेचर इन विद अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव. कुछ अलग से एंगल से उसको पढ़ेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे. लेकिन इंग्लैंड वालों ने ऐसे कभी भी नहीं किया. उन्होंने ये सोचा कि इंडियन लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, और आप आगे जाके अगर आप मास्टर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनको ह्यूमिलेट किया जाता था. ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इंडियन लिटरेचर को किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाता था. तो दिस एटीट्यूड ऑफ एपैथी एंड कंटेम्प्ट इज़ नेचुरल वेयर द रिलेशनशिप इज़ अबनॉर्मल
and founded upon national selfishness and pride. Now he says ये जो behavior है, it is due to the national selfishness and pride. India and spiritual unity. ओके, सो इंडिया एंड स्पिरिचुअल यूनिटी. अब इंडिया में जो स्पिरिचुअल यूनिटी है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि पैरेललिज्म, मतलब पैरेललिज्म में जो दो चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं साथ साथ, एग्जिस्ट बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, एंड द पैरेललिज्म ऑफ वेल्डिंग टुगेदर इनटू वन बॉडी वेरियस रेसेस. और ये जो पैरेललिज्म है ये बहुत ज़्यादा रेसेस को इकट्ठा कर लेती है अपने साथ, इकट्ठा लेके चलती है आगे. Men of thought and power will discover the spiritual unity, will realize it and preach it. जो men हैं जो कि जिनके पास पावर है और जो उनके पास थॉट मीन्स थोड़े सेंसिटिव है, जो सोचते भी हैं, वो रियलाइज़ करेंगे कि स्पिरिचुअल यूनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो यू नो बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर ये बोल रहे हैं कि इट्स नॉट द पोलिटिकल यूनिटी बट इट इज़ द स्पिरिचुअल यूनिटी विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नाउ ही सेज we have been seeking to find out something common to all races. हम ट्राई कर रहे हैं पता करने की कि जो कुछ कॉमन है सारे रेसेस में, क्या कॉमन है उनकी एक, उसकी वजह और उसको लेके हम एक स्पिरिचुअल यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. The educated Indian at present is trying to absorb some lessons from history contrary to the lessons of our ancestors. The East, in fact, is attempting to take into itself a history which is not the outcome of its own living. तो एजुकेटेड इंडियन है वो कुछ प्रेजेंट में कुछ एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही है. सम लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री और जो हमारे पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनसे कुछ लेसन्स लेने की कोशिश कर रही है जो एजुकेटेड इंडियन है. द ईस्ट इन फैक्ट इज अटेम्प्टिंग टू टेक इन टू इट्स सेल्फ अ हिस्ट्री विच इज़ नॉट द आउटकम ऑफ इट्स ओन लिविंग. लेकिन जो ईस्ट है वो कुछ और लेना चाह रही है हिस्ट्री से जो कि उनकी अपनी आउटकम नहीं है. यू नो हमारे जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो हमारे ही पूर्वज और हमारी जो अपने कल्चर है उसकी कुछ अच्छी बातें ले रहे हैं, लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं हो रहा है. दे आर नॉट लुकिंग एट देयर ओन culture. We must know for certain that there is a future before us, and the future is waiting for those who are rich in moral idols and not in mere things. और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे आगे एक फ्यूचर है और वो फ्यूचर वेट कर रहा है किसी के लिए जो कि रिच है मॉरल आइडल्स में और नॉट मेयर थिंग्स. एंड दे आर नॉट रिच इन जस्ट मेयर थिंग्स, लेकिन मॉरली, मतलब मटेरियलिस्टिक उनके पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन मॉरली वो बहुत ज़्यादा रिच हैं. और जो मॉरली रिच होंगे उन्हीं का वो फ्यूचर होगा. नेशनलिज्म इज़ अ ग्रेट मेनेस. वो कहते हैं बहुत ही बड़ा मेनेस है. मेनेस मतलब बहुत क्योस है, जिसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इट इज़ वन पर्टिकुलर थिंग विच फॉर ईयर्स हैज़ बीन एट द बॉटम ऑफ इंडियाज़ ट्रबल्स. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंडिया के ट्रबल्स का बेस है, फाउंडेशन है. And in as much that as we have been ruled and dominated by a nation that is strictly political in its attitude, and we have tried to develop within ourselves, despite our inheritance from the past, a belief in our eventual political destiny. वो कहते हैं और हमारे साथ बुरा ये हुआ कि हमें जो रूल कर रहे हैं, जो कि इस टाइम पे ब्रिटिश रूल कर रहे थे, वो बहुत डिफरेंट नेशन है. वो ये सब नहीं मानती. वो कैसी नेशन है जो कि पॉलिटिकल, बहुत ही पॉलिटिकल है अपनी एटीट्यूड में. और ये हमने अपने को ट्राई तो हम कर रहे हैं कि ब्रिटिश नेशनलिज्म में ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम को हम अडॉप्ट करें, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. देन द प्रॉब्लम्स इन इंडिया, डिफरेंट पार्टीज़ इन इंडिया विद डिफरेंट आइडल्स. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टीज़ हैं जो कि जिनके डिफरेंट आइडल्स हैं. उस टाइम पे भी ऐसी पार्टीज़ थी, जैसे अभी जो पार्टीज़ हैं वो उस टाइम नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे भी थी, जो some are struggling for political independence, others think that the time was not right for that, and yet believe that India should have the rights and the English colonies have. They wish to gain autonomy as far as possible. कुछ अपने existence के लिए struggle कर रही हैं parties और कुछ बोल रही हैं हमें ब्रिटिश का जो पावर है वो चाहिए, मतलब रूलिंग, दे वांट टू रूल, दे वांट टू बी द रूलर्स एज सून एज पॉसिबल, कि हम जल्दी से फ्री हो जाएं. In the beginning of a history of political agitation in India, there were no conflict between parties where there is today. At that time, there was a party known as the Indian Congress. It had no real program. और उस टाइम पे एक पार्टी थी जो कि इंडियन कांग्रेस थी और उसका कोई रियल प्रोग्राम नहीं था और बस वो एजिटेशन के लिए ही बनी थी.
Her problem was the problem of the world in miniature. India is too vast in its area and too diverse in its races. It is many countries packed in one geographical receptacle. It is just the opposite of what Europe truly is, namely one country made into many. Thus, Europe in its culture and growth has its advantage. So now he says कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उसमें छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और इंडिया एक कंट्री है और उसमें छोटे छोटे स्टेट्स हैं. जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं दे आर लाइक द डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ यूरोप. जैसे एक कंट्री की एक अपनी लैंग्वेज होती है, एक अपना डिफरेंट कल्चर होता है, एक डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है, डिफरेंट डांसेस होते हैं. उसी तरह से इंडिया भी है. तो इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ एक पैक होके एक बड़ी कंट्री बन चुकी है. और वो उनको हम कंट्रीज़ नहीं, उनको हम स्टेट्स बोलते हैं. जैसे बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ पंजाब है, राजस्थान, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कंट्रीज़ में जैसे असम है, सिक्किम है. सबकी डिफरेंट religion, they have different religion तो चलो same, but they have different languages, they have different geographical locations, they have different food habits, they have different cultures, they have different dances, they have different dresses, जो उनकी traditional dresses हैं. तो ये problem है इंडिया में. The Europe and its culture and growth has all the advantages of the strength of the many as well as strength of the none. अब यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके पास स्ट्रेंथ सबकी भी है लेकिन वैसे किसी की भी नहीं है. Her caste system in the outcome of the spirit of toleration. For India has all along been trying experiments in involving a social unity within which all the different peoples could be held together, yet fully enjoying the freedom of maintaining their own differences. अब कास्ट सिस्टम जो है वो स्पिरिट इज़ द आउटकम ऑफ द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन. मतलब हम जो टॉलरेट करते हैं, स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन है, उसका आउटकम है कास्ट सिस्टम. और इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही है, काफ़ी दिनों से एक्सपेरिमेंट कर रही है सोशल यूनिटी अडॉप्ट करने के लिए, जिसमें सारे जो लोग हैं, डिफरेंट पीपल्स, दे कैन बी हेल्ड टुगेदर, येट फुली enjoying the freedom of maintaining their own differences. लेकिन शी इज़ ऑल्सो बीन ट्राइंग टू मेंटेन दैट freedom of trying to enjoy the freedom of maintaining their own differences. यूनाइटेड तो हम हों लेकिन हम अपनी जो लैंग्वेज है, हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखें और एक इंडिविजुअलिटी बनी रहे. सो दिस इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया. आपको स्लाइड जो मैंने दिखा दिया, उसको एक बार आप देख लेना. और नेक्स्ट नेशनलिज्म इन द वेस्ट भी हम करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों एसेस की. इसमें आपने बस ये देखना है कि ये जो एसेस में आपने ये पॉइंट्स देखने हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है और इंडिया में क्यों नहीं अप्लाई करता. और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो वेस्ट से आया था, इंग्लैंड से आया था, क्योंकि वो इंग्लैंड जो है यूरोपियन नेशंस हैं, उनका अपना कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का. जैसे मैंने आपको बताया क्यों नेशन बने, उनका डिफरेंट है कि रिसोर्सेज की वजह से दे हैव देयर ओन बाउंड्रीज एंड देन दे वुड कीप अटैकिंग अदर कंट्रीज. लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं है. इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं लेकिन एक स्पिरिचुअल यूनिटी है जो कि बाउंड करती है. लेकिन इनकी जो यूनिटी है जो इन नेशंस की, इट इज़ अ पॉलिटिकल यूनिटी. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू नोट. ओके, देन टेक केयर and study well, and please note down these points, and if you have any doubt you can ask me later. Bye.